Hello everyone, I'm back after a long time. I have decided to start a new series on observational or positional astronomy where we will build intuition about how we actually locate and track objects in the sky. तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज में. So first is coordinate system, which is going to be a topic for today's video. Then we have numericals on coordinate system where we will use spherical trigonometry to solve some numericals. Then we have equinoxes and solstices, which I have already discussed in a YouTube short, but I will still try to focus more in depth for the video for the series. Then we have distance and parallaxes, time zones, precession of Earth, twilight, and many more other topics which I think are suitable for this series, which I will be adding later on. तो आज इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे बेसिक पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सीखने का. अभी कंसिडर कीजिए कि हम स्टार गेजिंग के लिए आए, बट उसके लिए एक एम्बियंस सेटअप करते हैं पहले, ताकि हम नाइट स्काई को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए. ठीक है. कुछ हजारों सालों पहले लोगों ने स्काई को ऐसा देखा था, इतना क्लियर. पर आजकल ऐसा स्काई हमें सिर्फ लद्दाख या फिर स्पीति वैली में देखने को मिलता है. और एक टिपिकल सिटी स्काई हमें कुछ आजकल ऐसा दिखता है. और इसके पीछे रीज़न है लाइट पोल्यूशन. बिकॉज ऑफ टू मच सिटी लाइट एंड होराइजन लाइट, we can't see all the stars in the sky, and usually the brightest among the neighboring stars can be seen. Okay. And एक अभी हम ट्राई करेंगे एक टिपिकल रूरल स्काई स्टडी करने का. तो ये जो स्काई था मैंने पहले दिखाया था, ये बिना एटमॉस्फेयर का स्काई है. ओके. सो इसके लिए मैं अभी एक टिपिकल रूरल रेंज सेट करूंगा, जो कि हमें गांव से या फिर कई डार्क लोकेशन से जो स्काई दिखता है वो सेट करूंगा, और फिर उसको यूज़ करके हम पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सीखेंगे या फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टार सीखेंगे. ठीक है. सो लेट मी फर्स्ट सेटअप द रूरल स्काई. ओके. सो अभी मैंने टिपिकल रूरल स्काई सेटअप किया है. ये बिना एटमॉस्फेयर का स्काई है जो अभी हमें दिख रहा है. और अगर आप रूरल या फिर डार्क लोकेशन पे जाओगे आपके गांव में या फिर कहीं और, तो हमें एक टिपिकल स्काई ऐसा दिखता है विदाउट लाइट पोल्यूशन. सो इतना रेंज एक नॉर्मल है और रूरल स्काई के लिए या फिर डार्क लोकेशंस के लिए. ठीक है. एक टाइम था जब लोगों ने इसी स्काई को यूज़ करके डायरेक्शन फाइंड की थी और नेविगेशन सिस्टम के रूप में इसे इस्तेमाल किया था. बेबीलोनियंस, ग्रीक्स, इंडियंस, इजिप्शियंस और पॉलिनेशियंस जैसे सभ्यताओं ने स्काई को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करके ना सिर्फ नेविगेशन किया, बल्कि क्लाइमेट और चेंजिंग वेदर पैटर्न्स को भी समझा था. और इसी से डेवलप हुई थी पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी. तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि ये कैसे होता है. Okay, so let's first try to point out the north direction. For that, we shall start looking for the North Star, aka Polaris, or also known as Pole Star. So, now, before that, what is Pole Star? So, it is a fixed star in the night sky which does not set below the horizon or rise. In our perspective, it is fixed in the sky. I will explain about this pole star in another YouTube short. For the time being, let's assume or let's keep in mind that the pole star is a fixed star in the night sky. Okay. So if we find the north star or the pole star, then using it we can find the north direction, because obviously the pole star is facing the north direction. So if we know the location of the pole star, then that direction is the north direction. So there are different constellations for different seasons which help us to identify the north direction. So from September to Feb, the prominent constellation used to find the Polaris is the Cassiopeia, जो कि W या फिर M shape जैसा दिखता है depending on the time of the year. And from mid Feb to the August, the prominent constellation is the Ursa Major, which is also known as the Big Bear or the Big Dipper, जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं. इसे हम यूज़ करके भी पोल स्टार फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. और दो ऑप्शंस जो कि है सीफस और ड्रैको, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द नॉर्थ स्टार. बट मेजर केसेस में कैसियोपिया और उर्सा मेजर ही यूज़ किया जाता है बिकॉज ये ज़्यादा अपीलिंग है. ओके. सो नाउ अभी मैंने टाइम सेट किया है 2025 का 10th मंथ, दैट इज़ द अक्टूबर, एंड 10th डे ऑफ द मंथ. ओके. एंड टाइम मैंने अभी फिक्स किया है अप्रॉक्स 8:30 का फिक्स करते हैं. ठीक है. 8:30.
और मैं इसे पॉज कर देता हूँ। ओके, सो नाउ अभी कंसिडर कीजिए कि हम एक लोकेशन पे आए हैं स्टार गेजिंग के लिए, और अभी हम यहाँ पे सिंस अभी मैंने 10 अक्टूबर का टाइम सेट किया है, तो हमें ऑब्वियस बात है कि हमें कैसियोपिया दिखेगा, जो कि यूज़ करेंगे हम पोल स्टार फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कैसियोपिया एक डब्ल्यू शेप या फिर एम शेप कॉन्स्टलेशन है डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द ईयर। तो अभी हमें यहाँ पे एक डब्ल्यू शेप जैसा जो स्टार का एस्टेरिज्म फॉर्म होता है या फिर शेप फॉर्म होता है उसको ढूंढना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम बहुत सारे ऐसे स्टार्स है जो कि डब्ल्यू शेप फॉर्म कर सकते हैं, पर हमें एक्चुअल रियल लाइफ व्यू में सिर्फ एक ही ऐसा कॉन्स्टलेशन दिखेगा जो कि डब्ल्यू शेप फॉर्म करता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल ब्राइटनेस, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे हमें बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं, पर एक्चुअल लाइफ में हमें थोड़े ही दिखेंगे। तो अभी यहाँ पे हम ट्राई करेंगे थोड़ा सर्च करने का, और एक पॉइंट आएगा जब हमें एक प्रोमिनेंट डब्ल्यू शेप कॉन्स्टलेशन दिखेगा, जो कि है ये वाला ऐसा शेप का। ठीक है, तो ये जो डब्ल्यू शेप फॉर्म कर रहा है उसे हम कैसियोपिया कहते हैं, जो कि एक फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है कैसियोपिया। ठीक है, देन अभी हम इस कॉन्स्टलेशन को लेकर इसका जो ऑप्ट्यूज एंगल है ये वाला, ये ऑप्ट्यूज एंगल है और ये एक्यूट एंगल थोड़ा बना रहा है। ऑप्ट्यूज ही जा रहा है, अप्रॉक्स 90 दिखता है हमें ये, पर ये जो ऑप्ट्यूज है उसे हमें कंसिडर करना है। ठीक है, अभी फिर हम अगर इस ऑप्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से बाइसेक्ट करेंगे और इसको स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड करेंगे ऐसे यहाँ पे, तो ये हमारा बन गया पोल स्टार और द नॉर्थ स्टार। ठीक है, पोलरिस। तो मतलब ये डायरेक्शन हमारी हो गई नॉर्थ साइड। सो इतना इजी है हमें फाइंड करना, पर ये नाइट स्काई में हमें ये प्रोमिनेंट दिखता है एक्चुअली, जो कि हम कैसे भी नोटिस कर सकते हैं इजीली इन द एक्चुअल रियल नाइट स्काई। ओके, सो आप ट्राई करना कि ये डब्ल्यू शेप कॉन्स्टलेशन आपको मिलेगा, और उसका जो ये ऑप्ट्यूज एंगल है, ये ऑप्ट्यूज एंगल, सो दिस इज डब्ल्यू, so this is the another angle forming which is being formed here and another angle which is being formed here। so इसको ऑप्टिस एंगल को बाइसेक्ट करना है और उसकी बाइसेक्टर को एक्सटेंड करना है, फिर हमें यहाँ पे पोल स्टार मिलेगा which is the Polaris। you can see here Polaris, the pole star। okay, then this was one of the method to find the north direction। and obvious है कि अगर ये north direction है तो हमारी ईस्ट होगी ये, साउथ होगी हमारी ये पीछे, और ये होगी हमारी वेस्ट। ओके, यहाँ पे कुछ इधर तो आएगा वेस्ट। ओके, सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, एंड हमारे पीछे है साउथ। ओके, so this is our Cassiopeia, who is a queen and she is sitting on a chair. You can imagine her like that. Okay, and her husband is the king Cephas। okay, so king Cephas you can see is beside her here, as you can see यहाँ पे एक स्क्वायर है और यहाँ पे एक नीचे एक और स्टार है। ओके, सो this structure, this whole structure forms the Cephas, who is a king and his queen is Cassiopeia, okay, which is represented here। okay, so you can assume Cephas as sitting on the chair and Cassiopeia standing here। okay, and also एक दूसरा मेथड है स्टार को फाइंड करने का, जो कि है उर्सा मेजर, जिसे हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें टाइम थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। ओके, सो टाइम को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम इसको मार्च में लेके जाते हैं, ठीक है, या फिर अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल आ गया। ओके, अप्रैल में अभी हम उर्सा मेजर को कैसे जान सकते हैं। उर्सा मेजर इज अ बिग डिपर और द बैरी कॉन्स्टलेशन, जिसे हम इंडियन में सप्तऋषि कहते हैं। तो उसका ये जो प्रोमिनेंट फिगर है ये ऐसा दिखता है। ओके, सो आप नेट पे पहले देख लेना ये कैसा दिखता है, और फिर जब आप एक्चुअल स्टारगेजिंग करने जाओगे तब आप ऐसे फिगर को फाइंड करना। सो ओके, तो हमारा ये जो उर्सा मेजर है ऐसे दिखता है। ओके, so these are the 7 stars, 4 year, 3 year। okay, so now this shape, okay, this 4 trapezium and this extending tail forms the Ursa Major or the Big Bear constellation सप्तऋषि। okay, so जो इसके जो दो ब्राइटेस्ट स्टार है जिसे हम अल्फा
अल्फा उर्सा मेजर इज और बीटा मेजर इज ओके। सो ये अल्फा और बीटा ये दो ब्राइटेस्ट स्टार है। तो अगर हम इन दोनों को एक्सटेंड करेंगे एज अ स्ट्रेट लाइन, ओके, इन दोनों से स्ट्रेट लाइन खींचोगे यहाँ से नीचे, ओके, सो दिस फॉर्म्स अ सॉरी दिस पॉइंट्स एट द नॉर्थ स्टार और द पोलरिस, ओके। सो हमारा ये वापस पोल स्टार हुआ। एंड दिस मेथड विल वर्क फॉर द work till the August month, okay. After that this constellation Ursa Major till August month will start moving here, and from here the Cassiopeia will start rising again. So after August this Ursa Major will set at this same time, and this Cassiopeia will start rising from here, okay. So इसलिए ऐसा है कि अगस्त के बाद हम कैसियोपिया यूज करेंगे। दिखाता हूँ आपको मैं अभी यहाँ पे, ओके। सो देखिए 5 मई आ गया, 6 जून, जुलाई, अगस्त, ओके। अगस्त पे हमारा सप्तऋषि या फिर उषा मेजर यहाँ पे आ गया, शिफ्ट हुआ है। और उसके बाद इमीडिएटली ऑन सितंबर एट द सेम टाइम द कैसियोपिया विल स्टार्ट राइजिंग अगेन, एंड द उर्सा मेजर विल सेट बिलो द होराइजन। इसलिए हमारा उर्सा मेजर विल नॉट बी यूजफुल नाउ आफ्टर द अगस्त मंथ, एंड फ्रॉम द सितंबर मंथ वी विल यूज कैसियोपिया टू फाइंड द नॉर्थ स्टार और द पोलरिस, ओके। सो अभी हमें कार्डिनल पॉइंट्स पता चल गए कि हमारा ये डब्ल्यू है, यहाँ से हमारा नॉर्थ स्टार आया, ये तो ये हमारी हो गई नॉर्थ डायरेक्शन, ये ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट होगी, यहाँ पे वेस्ट होगी, और पीछे हमारे साउथ हो गए। तो अभी फ़िलहाल हमें पता है कोऑर्डिनेट्स या फिर डायरेक्शन कार्डिनल पॉइंट्स। तो मैं इन्हें टर्न ऑन कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे आ गया हमारा नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे पीछे साउथ मिल्की वे दिख रहा है, ओके, एंड यहाँ पे वेस्ट। सो अभी हमें कार्डिनल पॉइंट्स मतलब नेविगेशन कैसे करना है ये तो पता चल गया है, पर अभी हम ट्राई करेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम एस्ट्रोनॉमी में यूज़ करते हैं वो कैसे जान पाएंगे इसे लेकर, ओके। सो पहले हमारे पास दो टाइप के फिलहाल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है जो कि मेनली यूज़ होते हैं, वो है अज़ीमुथ अल्टाइज सिस्टम और दूसरा है EQ सिस्टम, ओके। सो अल्टाइज में क्या होता है, अल्टाइज होता है अल्टीट्यूड और अज़ीमुथ, ओके। सो ये दोनों यूज़ करते हैं जो कि हमारा ऑब्जर्वर बेस्ड रहता है, ओके, एंड इट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन एंड द ऑब्जर्वर, ओके। एंड ऑल्सो द EQ system where we use the RA and declination as two axes which is the fix for any observer on who is present on any location, okay. It does not change with respect to the location. So EQ is a fixed system for despite of the observer's location, and Altize depends on the observer's location, okay. इन दोनों के बीच में इनका एक और आता है जो कि है आर एंगल डेक्लिनेशन सिस्टम, ओके। तो इसमें क्या होता है कि डेक्लिनेशन सिस्टम हर एक ऑब्जर्वर के लिए फिक्स रहता है, पर उनका जो आर एंगल एक्सिस है वो हर एक के लिए बदलता रहता है, ठीक है। तो आइए पहले हम अल्टाज से स्टार्ट करते हैं बेसिक, ठीक है। तो अल्टाज में क्या रहता है, हमारा जो ग्रिड रहता है, जो जैसे हमें आपको पता है लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, तो वैसे ही हमें हमारा अल्टाज रहता है, ठीक है। तो अल्टाज सिस्टम मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा अल्टाज सिस्टम ऑन हो गया है, ठीक है। तो हम इसे कैसे मेजर करते हैं, अभी हमारा ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए हमारे ऑब्जर्वर का जो है मेरिडियन है, ठीक है। हमारा ऑब्जर्वर, अभी हम ऑब्जर्वर है तो हमारे मेरिडियन है जो परफेक्ट लाइन जो नॉर्थ से साउथ पे जाती है, ठीक है। ये देखिए नॉर्थ से ये जो लाइन जा रही है और पीछे साउथ पे मिड होगी, ठीक है। ये पूरा जो सर्कल बना रहा है, ओके, ये देखिए ये नॉर्थ से साउथ पूरा जो एक लाइन बन रहा है, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे ऑब्जर्वर्स मेरिडियन हमारे लिए, और ये हर एक आदमी के लिए, हर एक लोकेशन के लिए डिफर करेगा, ठीक है। तो अभी हम इन्हें मेजर कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो हमारा जो एल्टीट्यूड होता है वो हमारा एंगुलर डिस्टेंस है एज वी मूव अपवर्ड्स, ओके। एज वी मूव अपवर्ड्स वो हमारा एंगुलर डिस्टेंस है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है हर एक, ये हमारा एंगुलर डिस्टेंस बताते हैं, ठीक है। ऐसे ये यहाँ से चालू होता है, ठीक है। तो हमारा इसमें ये रेफरेंस स्टार्ट होता है हमारा जीरो से, मतलब हॉराइजन से। तो हमारा हॉराइजन है, ये हॉराइजन लाइन है, ये हमारी जीरो है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये 0 डिग्री लिखा है, ठीक है, ये 0 डिग्री। तो हमारा ये जो हॉराइजन है, हॉराइजन का जो एल्टीट्यूड है वो 0 रहता है, और उसके रिस्पेक्ट से हम ऊपर मेजर करते हैं, ठीक है।
अगर हमें नीचे जाना है मेजर करने तो हमारी साइन कन्वेंशन चेंज होगा, तो हमारा नीचे होगा माइनस में चला जाएगा, ठीक है। जो हमारा बेसिक ज्योमेट्री में ग्राफ्स में हम जो एनालॉगी लगाते हैं, सॉरी जो लॉजिक लगाते हैं वही लॉजिक हमारा इधर यूज होगा, सेम एनालॉगस है, ठीक है। तो आई मीन कन्वेंशंस के लिए एनालॉगस है, ठीक है। फिर अभी ये हमारा नॉर्थ है, तो हमारे नॉर्थ से ऊपर मतलब सॉरी होराइजन से ऊपर जैसे हम जाएंगे तो हमारा वैसे डिग्रीज इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये 0 डिग्री यहाँ पे होगा, यहाँ पे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, और ये टॉप मोस्ट पॉइंट आया हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट रहता है उसे हम कहते हैं जेनिथ, ठीक है। मतलब हमारा पॉइंट जो अबव हमारे हेड रहता है, तो उसे हम कहते हैं जेनिथ, जो कि 90 डिग्री पे आता है। और इसके स्ट्रेट नीचे जो आता है, मतलब हमारे पैरों के नीचे जो पॉइंट आता है यहाँ पे किधर तो आएगा, उसे हम कहते हैं नादिर। ओके, सो मतलब अभी हमारे 0 डिग्री मैंने बोला ना ऊपर जाते वक्त प्लस में जाता है, ठीक है। तो यहाँ से 0 से प्लस 90 डिग्री हमारा यहाँ पे आया, ये वाला, ये प्लस 90 डिग्री हमारा ये आया जेनिथ, ठीक है। और यहाँ से अभी अगर हम सीधा नीचे गए, मतलब माइनस 90 डिग्री में गए यहाँ पे स्ट्रेट बिलो और फीट, तो हमारा ये होगा नादिर। ओके, सो ये 2 पॉइंट्स भी जो है वो इम्पोर्टेंट है इन द पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। सो अभी हमें पता चला ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये वो जेनिथ है एट 90 डिग्री। सो इसका एल्टीट्यूड है 90 डिग्री, और हॉरिजन का एल्टीट्यूड है 0 डिग्री, यहाँ पे ये वाली लाइन हॉरिजन, ठीक है। ओके, सो ये हमारा होगा एल्टीट्यूड सिस्टम, एल्टीट्यूड एक्सिस। ओके, 0 to 90 डिग्री अपवर्ड्स मेजरमेंट फ्रॉम द होराइजन। अभी अजीमुथ कैसे मेजर करते हैं? अजीमुथ इज सिमिलर टू द लॉन्जिट्यूड्स। ओके, उसको हम रेफरेंस कहाँ पे दे? अभी अभी हमने देखा था ना कि नॉर्थ के एल्टीट्यूड के लिए हमारा रेफरेंस था ये होराइजन, पर इसके लिए अजीमुथ के लिए हमारा रेफरेंस रहता है ये नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब हमारा ऑब्जर्वर्स मेरिडियन, ठीक है। ये ऑब्जर्वर्स मेरिडियन हमारा नॉर्थ से चालू होता है, तो यहाँ से हम मेजर करते हैं। पर यहाँ से किस तरफ मेजर करेंगे? इस तरफ कि इस तरफ? ओके, सो इसके लिए हम ईस्टवर्ड्स मूव करते हैं। सो नॉर्थ से लेके हम ईस्टवर्ड्स जाएंगे और ऐसे ही घूम के पूरा मेजर करेंगे, ठीक है, ऐसा। तो कैसे करते हैं एग्जैक्टली? तो अभी हमारा पूरा एक सर्कल बन रहा है, ये नॉर्थ से वापस पूरा एक नॉर्थ, मतलब ये पूरा जो राउंड अभी मैंने मारा ये पूरा 360 डिग्री बना रहा है, ठीक है। 360 डिग्री एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो इसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी ये नॉर्थ है, नॉर्थ यहाँ पे ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट परपेंडिकुलर होंगे 90 डिग्री, मतलब नॉर्थ से जा लेके ईस्ट तक अगर हम जाएंगे तो इनका एंगुलर डिस्टेंस कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। सिमिलरली ईस्ट से लेके हम साउथ में जाएंगे तो वापस एंगुलर डिस्टेंस कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। साउथ से लेके वेस्ट भी 90 हुआ, और वेस्ट से लेके वापस नॉर्थ भी 90 डिग्री हुआ, तो टोटल 360 डिग्री कंप्लीट हो गए। ओके, सो अजीमुथ मेजर करने के लिए हमें नॉर्थ से ईस्टवर्ड्स मूव करना है, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं आप, ये जो वर्टिकल लाइन्स है ये वाले, ये वर्टिकल लाइन्स है, ये अजीमुथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा नॉर्थ हमारा रेफरेंस है जो कि हमारा ऑब्जर्वर्स मेरिडियन है, तो यहाँ से हमारा 0 डिग्री होगा। तो नॉर्थ पे कोई भी स्टार होगा तो उसका अजीमुथ होगा 0 डिग्री। और जैसे हम ईस्टवर्ड्स मूव करेंगे, मतलब ईस्टवर्ड्स ही मूव करना है मेजर करने के लिए, ठीक है। सो अभी हमारा स्टार यहाँ पे है, ठीक है, ये स्टार समझो। तो हमारा इसका पोजीशन कैसे होगा? ईस्टवर्ड मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ से 0 डिग्री, ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, और ये 60 डिग्री है। यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री आ रहा है, तो इनके बीच है लगभग, मतलब ये हमारा अप्रॉक्स 55 डिग्री हो सकता है। तो इस तरह का अजीमुथ हमारा होगा 55 डिग्री लगभग, क्योंकि ये 50 डिग्री और ये 60 डिग्री के बीच में आ रहा है। ओके, और अभी इसका ये तो हमारा देख सकते हैं कि एक्स पोजीशन होगा, एक्स पोजीशन एक्स एक्सिस का, ठीक है। तो वाई एक्सिस में कैसे होगा? तो वाई एक्सिस मतलब हमारा क्या है? अल्टीट्यूड सिस्टम है ना, ये ऊपर जा रहा है, ये जो ये वाले लाइंस है ये हमारे अल्टीट्यूड है, ठीक है। तो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर के लिए कौन सा है हमारा रेफरेंस? तो हमारा 0 ही रहेगा ना, ये होराइजन रेफरेंस है हमारा 0। सो 0 और ये 10 डिग्री, तो 10 और यहाँ पे 20, यहाँ पे बीच में 15 आएगा, ठीक है। तो 15 और ये 10 डिग्री के बीच में हमारा स्टार लाई कर रहा है। ओके, सो हमारा ये स्टार का, ये वाले स्टार का अप्रोक्स एंगुलर मतलब एंगुलर डिस्टेंस दैट इज द एल्टीट्यूड होगा 11 डिग्री समझ लो, क्योंकि ये 10 डिग्री है और ऊपर जा रहा है, तो 11 डिग्री या फिर 10.5 डिग्री समझ के मान के चलो, ठीक है।
तो इस तरह का हम पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे इन द टर्म्स ऑफ द एल्टाज सिस्टम या फिर एल्टीट्यूड अजीमुथ सिस्टम। तो हमारा ये मैंने बोला था अजीमुथ हमारा यहाँ पे 50 और 60 डिग्री के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अप्रॉक्स 55 डिग्री होगा, ठीक है। और ऊपर जब हम जा रहे हैं अजीमुथ पे, तो सॉरी एल्टीट्यूड पे, तो हमारा अप्रॉक्स जो एंगुलर डिस्टेंस आ रहा है वो है यहाँ पे 10 डिग्री यहाँ पे है। तो ये 10.5 या फिर 11 चल के मान के चलो, ठीक है। तो हमारा इसको हम 10.5 कंसिडर करते हैं क्योंकि यहाँ पे 15 डिग्री है, तो 13 14 13 12 11 यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे बीच में 10.5 आ सकता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो दिस स्टार्स पोजिशन विल बी 55 डिग्री। पहले अजीमुथ मेंशन करना है, ठीक है। अजीमुथ कॉमा एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। तो पहले अजीमुथ इसका क्या आएगा यहाँ पे 55 डिग्री और फिर इसका एल्टीट्यूड आएगा वो है हमारा 10 पॉइंट, ये वाला 10 पॉइंट यहाँ पे 10.5 डिग्रीज, ठीक है। दोनों का यूनिट्स है डिग्री, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका एक्चुअल कैसा आ रहा है। अब इस पर हमने क्लिक करके यहाँ पे देखा तो इसका अजीमुथ और एल्टीट्यूड प्रॉपर सेम आ रहा है, देखा 55 डिग्री और ये है 10 डिग्री, तो 10.5 डिग्री मतलब, ठीक है। तो ऐसे ही हमें स्टार का पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि है एल्टीट्यूड और अजीमुथ, ठीक है। तो अभी इस कौन सा तारा ले, ये तारा लेते हैं, ठीक है। ओके, ये तारा लेते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे नॉर्थ से पहले अजीमुथ डिफाइन करते हैं, नॉर्थ टू ईस्ट मूव करना है, ठीक है। तो हमारे पास है ग्रिड से 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो इनके 80 और 90 के बीच में आ रहा है। और देख सकते हैं आप इधर से बीच में एक लाइन खींचो, 80.5 है और 80.5 के पे थोड़ा सा पहले आ रहा है, ठीक है। मतलब दिस इज क्लोज टू 85। सो अप्रॉक्स 84 मान के चलते इसको, ठीक है, 84। तो इसको 84 मान के चलते हैं, तो इसका जो अजीमुथ होगा वो 84 डिग्री होगा, ओके। एंड इसका भी एल्टीट्यूड कितना होगा? एल्टीट्यूड के लिए हम देखते हैं जीरो से, होराइजन से मेजर करना है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द होराइजन, ओके। सो ये हमारा होराइजन है 0 डिग्री, ये 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री और ये 40 डिग्री, ठीक है। ये 40 और 30 डिग्री के बीच में आ रहा है और यहाँ पे बीच में हमारा 35 डिग्री होगा और ये 35 के भी क्लोज आ रहा है। तो इसका मतलब अप्रॉक्स मान के चल रहा है 34 डिग्रीज होगा, ओके। सो इसका एल्टीट्यूड होगा 34 डिग्री और इसका अजीमुथ होगा 84 डिग्री। तो अभी इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अजीमुथ आया हमारा 84 डिग्री अप्रॉक्स और 34 डिग्री अप्रॉक्स। तो देखा, तो ऐसे ही हम मेजर कर सकते हैं पोजीशन ऑफ स्टार यूजिंग बेसिक अल्टीट्यूड और अजीमुथ सिस्टम, ओके। बट इन रियल लाइफ हमें पता है कि ये हमारे पास ऐसे ग्रिड्स नहीं होंगे क्योंकि अभी हम स्टेलरियम पे मेजर कर रहे हैं इसलिए हमें इजी पड़ रहा है। पर एक्चुअल लाइफ में हमारे पास ये ग्रिड्स नहीं होते, तब हम क्या यूज़ करते हैं? जो अप्रोक्सीमेशन होता है वो यूज़ करता है हमारा हैंड स्पैन, ओके। तो हमारा हैंड्स को यूज़ करके या फिर पाम को यूज़ करके हम अप्रोक्स मेजरमेंट कर सकते हैं कि वो तारा कहाँ पे हो सकता है, ओके। तो अभी मैं फिलहाल के लिए ग्रिड टर्न ऑफ कर देता हूँ, ओके। सो मैंने अभी यहाँ पे एक पॉपअप दिया है हैंड स्पैन का, ठीक है। तो कैसे ये अप्रोक्स डिग्री हम मेजर कर सकते हैं? तो आपको क्या करना है, अप्रोक्स डिग्रीज मेजर करने के लिए आपके हैंड को स्ट्रेट अबाउ योर आई एट द लेवल ऑफ योर आई सेट आपको रखना है और उसको अलग अलग फिंगर कॉम्बिनेशंस को यूज करके हमें मेजर करना है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा दिखाता है डिग्रीज फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ओके। सो विदाउट ग्रेड्स हम ट्राई करते हैं अप्रोक्स मेजर करने का, ठीक है। अभी ये हमारा नॉर्थ साइड आ गया है, ओके। एंड अभी हम क्या करते हैं, ये तारा लेते हैं, ये वाला, ये आर्कटरस है एक्चुअली, ओके। सो इसको हम मेजर करने का ट्राई करते हैं पोजीशन। सो फ्रॉम नॉर्थ वी हैव टू मूव दिस वर्ड्स, बट वी कांट डायरेक्टली मूव दिस वर्ड्स बिकॉज फॉर अजीमुथ सिस्टम वी हैव टू मूव फ्रॉम ईस्ट, ओके। सो ये नॉर्थ हो गया, पहले अजीमुथ फाइंड करते हैं ईस्ट स्टार का, ओके। सो वी हैव टू मेजर नॉट लाइक दिस, like 10 20 30 40 50, okay. We have to measure like this from here, okay. So north is 0 degree, northeast will be 45 degree, this will be 90 degree, and as we move, okay, 90 degree, then again 90 degree. So north to south is how is here our 180 degree, and then again as we move towards west it becomes 270 degree, okay. So now we can see that this star is between this complete 270 degree
to this 360 degree complete rotation. Okay, as I said, this will be 270, and after 270 here we have northwest, which will be the at 45 degrees from both of these directions. So 270 plus this 45 gives you 315 degrees. Okay, so that means this star lies between the azimuth range of 270 degree and 315 degree. Okay, so we have to measure approximately how much azimuth of this star is. So we can divide this interval in approximately say 10 parts. Okay, so 270 degree, then 280 degree, 290 degree, 200 and sorry 300, 310 degree, like this. And approximately we can see that if 270 is here, 270 is here, then 280 will be somewhere around here, 290, 300, 310, and since this is 315, so we can get 320 somewhere around here. Okay, okay, so for that, so since 280 is here, then this star is somewhere between 280 and 290. Okay, so let's assume this to be approx 280 degree, because we don't know the exact intervals of the grid. Okay, so we are considering it approx 280 degree since it is from here to here. And then for altitude, we shall measure from the horizon, that is 0 degree. From 0, as we move upwards, we have to use the again handspan system, and from using it we shall approx get this as uh, uh, say 15 degree or 20 degree. Okay, so the altitude for this will be 15 degree or 20 degree. Now let's try to see what are the actual values of Altair for this. Okay, Arcturus star. So approx at 283 degree. See, as I said, 280 was our approx measurement, and it is actually turns out to be 283 degree, and the altitude is 21 degree. Okay, so it is slightly more than that we assume, that is 15 or 20 degree. Okay, so this it is not necessary that this shall be accurate, because since we are only doing the sky observation, any approx values uh, are like valid for the measurements. Okay, so this was the crux of the, we can say, altitude azimuth system. Okay, so now let's try to find the altitude or azimuth of pole star. Okay, now you tell me what can be the altitude and azimuth of the pole star. Try to answer in the comment section. Okay, use the stellar map and try to locate or this pole star on yourself by your own, and then without using any grid system, try to answer this coordinates of the pole star, because we have to you have to use the basic logic which we used for the grid system, like the reference points, the observer's meridian, which is 0 degree. Okay, so we have to answer directly from this video only. Okay, try answering, it will be good for your improvement. Okay, now we shall try to observe some another star which is below the ground. Okay. In real life it is not possible, but for the understanding or to give you the intuition, let's try another example as well. Okay, so मैं यहाँ पे ग्राउंड को टर्न ऑफ कर देता हूँ और अल्टा सिस्टम वापस चालू कर देता हूँ ग्रिड, क्योंकि ऑब्वियस हमें नीचे नहीं पता चलेगा कौन सा तारा किधर होगा. ओके, सो to just get an basic idea again, so this is our north star, which is our, so this line is our horizon line. Okay, below that the sign convention changes. Okay, so नीचे जाके हमारा माइनस में चला जाएगा, पर हमारा जो अजीमुथ है यहाँ से यहाँ वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. ओके, सो ये तारा होगा हमारा यहाँ पे. ओके, ये तारा. ठीक है, तो अभी इसका कैसे फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट. तो हमारा ये है हमारा 0 डिग्री हमारा मेरिडियन, यहाँ से हमें मूव करना है टुवर्ड्स द ईस्ट. ओके, सो 10 डिग्री 20 डिग्री, तो ये अप्रोक्स 20 डिग्री पे आ रहा है. अच्छा है, ठीक है. फिर अभी हमारा ये अल्टीट्यूड में कैसा जाएगा, यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन का अल्टीट्यूड 0 है, यहाँ से नीचे जाना है 0 डिग्री, सो 10 डिग्री 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री है. सो हाँ, ये तो ऑब्वियस बंदा है क्योंकि पूरा स्क्वायर बना रहा है, तो इसका अप्रोक्स अल्टा जेड माइनस सॉरी 20 डिग्री कॉमा माइनस 20 डिग्री. ओके, ठीक है, तो ये देखा यहाँ पे आ गया 20 डिग्री, जो कि अजीमुथ है हमारा, जो कि हमारा अजीमुथ आता है यहाँ से, जो कि
फिक्स रहता है ऊपर और नीचे के स्काई के लिए, उसका साइन कन्वेंशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि वी आर मूविंग जस्ट फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट direction. Okay, and for the assumed altitude it will change because here our reference was 0. So, okay, and we are moving up, so it will be positive, and if we go down it will be negative. Okay, तो इसलिए हमारे यहाँ पे इस स्टार का हमारा अल्टीट्यूड आया -20 डिग्री. ओके, ठीक है. देन लेट्स अगेन try to find the लोकेशन ऑफ दिस स्टार. ओके, अप्रॉक्स ये हमारा क्या हो सकता है, -90 डिग्री के अराउंड, या फिर -80 और -90 के बीच में. क्यों? क्योंकि ये तारा हमारा नादिर के इधर है, ये हमारा नादिर पॉइंट हुआ ना. मैंने पहले बोला था ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट 90 डिग्री जा रहा है, जिसका हमारा एल्टीट्यूड 90 डिग्री जाता है, वो हमारा पॉइंट 90 डिग्री जेनिथ होता है. ठीक है, और इसके स्ट्रेट नीचे जो -90 पे पॉइंट जाता है हमारा, ये वाला, ये जो -90 पे जा रहा है, वो हमारा पॉइंट है नादिर. ओके, ओके, सो ये हमारा 90 डिग्री होगा और ये हमारा 80 डिग्री हुआ, तो इनके बीच में लाई कर रहे हैं. ओके, तो इसका अप्रोक्स हमारा लैटिट्यूड एल्टीट्यूड हम बोल सकते हैं कि 85 कंसिडर करके चलो, या फिर 84 कंसिडर करके चलो. ठीक है, तो इसका जो है एल्टीट्यूड है वो होगा -84 डिग्रीज. ठीक है, so this was the basic idea of how we use the ALTAS system during our stargazing to approximately measure the position of the stars in the night sky. Okay, and this will be helpful in your astronomy or astrophysics course as well. Okay, so this was the whole idea of the altitude and azimuth coordinate system. Okay, and for the another two types which I mentioned, r angle declination and the eq system, the RADEX system, that I will be covering in the another videos. Okay, for this video we shall end here. Thank you so much for watching, and if you have gained any insight, please do comment, and also try to please answer the coordinate position, the position of the Polaris which I told earlier. Okay, thank you so much for watching. Do subscribe and do share with your friends to give them idea about how positional astronomy works. Okay, thank you so much. Bye.